Good morning, all of you students. The next topic in the grinding machines we are going to discuss is the types of grinding machine. Okay, types of grinding machine. Types of grinding machine. Generally, the grinding operation are classified as cylindrical grinding for generating cylindrical surfaces. The second type is for surface grinding for generating flat surfaces. The third type of grinding machine is centerless grinding machine for generating excess symmetric shapes. So these are the three types of grinding machines which are the grinding machines are classified. The first one I have discussed about the cylindrical, I have written here cylindrical grinding for generating cylindrical surface. As the name suggests, नाम से ही पता चल रहा है कि cylindrical grinding है तो cylindrical surfaces को, ठीक है, बेलनाकार surfaces को grind करने के लिए use किया जाता है. The second type is surface grinding for generating flat surfaces. ठीक है, तो जैसा नाम बता रहा है सरफेस ग्राइंडिंग का इस्तेमाल किया जाता है फ्लैट सरफेस को, चिकनी सतह को जनरेट करने के लिए. सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन फॉर द जनरेटिंग एक्सेस सिमेट्री शेप्स. ठीक है, एक्सेस सिमेट्री आपको पता है जिसमें जो बराबर भागों में होती है ना, तो उसको सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन से ही इस्तेमाल करके उस शेप्स को जनरेट किया जाता है थ्रू द ग्राइंडिंग ऑपरेशन. Okay, these are the three types of grinding machine we are going to discuss one by one. The first one we are going to start is cylindrical grinding for generating cylindrical surfaces. The above diagram which I have shown you, you have seen, this is the cylindrical grinding machines. आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं, ये एक लेथ की तरह ही एक मशीन है. It is like just like a lathe machine. It have headstock, okay, it have tailstock and it have the base. Okay, this is the grinding wheel. The difference between the lathe and the grinding machine, you can see there in the grinding in the lathe we have tool post. ठीक है, हमारे पास में टूल पोस्ट था जिसमें हम जो कि कैरियज के ऊपर रहता था एंड कैरियज वाज सपोर्टेड बाय द सेडल. ओके, then the tool post carries the tool and the movement was given by all the combination of that assembly. Okay, but here in the case of cylindrical grinding machine, we don't have any tool post. The tool post has been replaced by the wheel head and the grinding wheel. यहाँ पर टूल क्या है, यहाँ पर कोई ऐसा लोहा का कोई टूल नहीं है. यहाँ पर मैंने जैसे बताया था Al2O3 है ना, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नाइट्राइड और सिलिका का यूज करके हम एक गोलाकार व्हील बनाते हैं जिसको हम एक व्हील हेड के ऊपर, एक आर्बर के ऊपर लगाते हैं, छोटे से शाफ्ट के ऊपर, और वो शाफ्ट जो है मोटर ड्रिवन होता है. तो यहाँ पर टूल हमारा ग्राइंडिंग व्हील ही है. ओके, so this is the schematic diagram of a cylindrical grinding machine. आप इसको अपने कॉपी में अपने नोट्स बनाते वक्त इसको आप बना लेंगे. ठीक है, so the rest part of the grinding machine contains the upper table. Here you can see the lower table, and this is the wheel head and this is the grinding wheel and this is the work जिसके ऊपर हमको काम करना है. ठीक है, and this work has been supported by the tail stock at the end and the front it is connected with the headstock. Okay, so the working will be like this cylindrical grinding machine. Okay, so this is now how does it work. कैसा आपको डायग्राम को देख के क्या समझ में आ रहा है? Is it suitable? The diagram shows that is it suitable for the internal cylindrical surface? No. तो आप डायग्राम से आसानी से देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट के अंदर में कोई सिलेंडर अगर ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसके लिए हम सिलिंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन का इस्तेमाल
नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस के लिए ही यूज होगा। द फर्स्ट पॉइंट फ्रॉम द डायग्राम वी गेट अबाउट द सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन, लेट्स राइट, we are discussing about the cylindrical grinding machine. Okay, the first point is it is for external cylindrical surfaces. Okay, mind it, it is not suitable for the internal cylindrical surface generation. Okay, and you can see here in the diagram, in this cylindrical grinding machine, the work is held between two centers. यहाँ पे दो सेंटर है, ये वर्क है, यहाँ पर एक सेंटर मौजूद है, यहाँ पर एक में सेंटर मौजूद है, and one of these center is in the headstock and another one is in the tailstock. ठीक है, दो सेंटर के बीच में वर्क को लिया जाएगा। देखिए यहाँ से सिमेट्रिकल लाइन भी गई हुई है, एक्सिस लाइन जिसको हम कहते हैं। तो दो सेंटर रहेगा, जो कि एक सेंटर जो है इट इज हेल्ड बाय द हेडस्टॉक एंड सेकंड सेंटर इज हेल्ड बाय द tailstock. And this operation, what happens ki the rotating work is transverse across the face of the rotating grinding wheel. Okay, हम क्या करते हैं, जो रोटेटिंग यहाँ पे जब जैसे मशीन ऑन करते हैं, द ग्राइंडिंग विल स्टार्ट रोटेटिंग। ठीक है, यहाँ से ये गोल घूमना शुरू कर देता है, इस तरह से गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। एंड देन द व्हील इज फेड इनटू द वर्क बाय एन इक्वल अमाउंट टू द डेप्थ ऑफ द कट। हमको जितनी गहराई में उसको काटना है उतने हम व्हील को ले जाकर के उससे टच कराते हैं हमारे वर्क से, और उसको हम क्या करते हैं, ट्रैवल कराते हैं। ओके, व्हील जो है हमारा, व्हील हेड जो है ग्राइंडिंग व्हील को लेकर के थ्रू आउट ट्रैवल करता है, और यहाँ फ्रॉम फर्स्ट एंड पॉइंट, सेंटर पॉइंट टू सेकेंड लास्ट सेंटर पॉइंट, इट कट्स इन द ट्रांसवर्स मैनर. Okay, this is if you are able to understand the schematic diagram of any machine, you will be able to explain the construction of that machine very clearly. तो आपको सबसे पहले डायग्राम पढ़ने आना चाहिए कि व्हाट डज द डायग्राम से, एंड फॉर पर्टिकुलर टॉपिक आपको डायग्राम याद भी रखना जरूरी है कि किस मशीन का क्या डायग्राम है। अगर आप डायग्राम याद रखेंगे तो यू विल बी एबल टू आंसर। जस्ट आप डायग्राम बनाइए और कंस्ट्रक्शन को समझाइए जैसे मैंने आपको बताया, and you can get the working also from that diagram itself. तो cylindrical grinding machine का खाली तो आपको मैंने एक brief introduction दिया। ठीक है, this is about the cylindrical grinding machines. Let's see the second type. Let's discuss surface grinding machine for generating the flat surfaces. Surface grinding machine. Okay, so as the name suggests, it is used for generating flat surface. Okay, actually the machine, I will show you the diagram, you will get it that it is very similar to the milling machine operation. See, I'm going to show you the diagram. This is the diagram. Okay, you have seen the milling machine. Milling machine में भी ऐसी vertical milling machine आपको मैंने डायग्राम में पिछले यूनिट में जब पढ़ाई थी, तो अगर आप मैच करेंगे तो इट इज लाइक अ मिलिंग मशीन, और सिलेंड्रिकल ग्राइंडिंग मशीन इज जस्ट लाइक अ लेथ मशीन. ओके, सिंपल लेथ मशीन. तो आप इसमें देख सकते हैं हाउ इज द कंस्ट्रक्शन. हियर इज द बेड. Okay, this is the column and this is the wheel head, and the wheel has been mounted here, and this is the wheel guard. ये wheel guard की जरूरत हमको क्यों पड़ती है, ताकि जब भी चिप्स निकले तो ये wheel guard के थ्रू ये इधर उधर स्कैटर नहीं हो. ओके, एंड इट शुड प्रोटेक्ट दी व्हील ऑल्सो. ठीक है, दिस इज इन फिट, मतलब हम इसको ऊपर और नीचे, ये जो व्हील हेड है हम इसको ऊपर और नीचे कॉलम की मदद से, कॉलम में रेल ऐसे दो प्लेट्स लगे हुए होते हैं जिसमें ये सपोर्टेड रहता है हमारा व्हील हेड, और इसको हम ऊपर और नीचे कर सकते हैं. ये जो एरो दिखा रहा है आपको, इसका मतलब है कि व्हील हेड ऊपर और नीचे मूव कर सकता है. उसके बाद ये हमारे पास में दिस इज वर्क टेबल. वर्क टेबल के ऊपर वर्क हमारा रखा हुआ है, एंड दिस हाफ सर्कल यू कैन सी, दिस इज द ग्राइंडिंग व्हील. और ये जो वर्क टेबल है, दिस कैन मूव टू एंड फ्रो, फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट, एंड ऑल्सो इट कैन गिव द क्रॉस फीड ऑल्सो.
तो हमारे पास में ये x मूवमेंट हो गया, ये y मूवमेंट हो गया और ये z एक्सिस मूवमेंट. ओके, गॉट इट. दिस इज x मूवमेंट. ओके, दिस इज y मूवमेंट एंड दिस वन इज z मूवमेंट. तो तीन एक्सिस का मूवमेंट हमको, तो जो x एक्सिस की मूवमेंट है वो हमको मिलती है व्हील हेड में. ओके, व्हील जो हमारा ऊपर नीचे होता है, और y एक्सिस की जो मूवमेंट होती है वो हमको मिल जाती है अपने वर्क टेबल में, सॉरी हाँ, वर्क टेबल में. एंड द क्रॉस फीड इज ऑल्सो गिवन बाय द सेडल. यहाँ पर ये जो सेडल मूवमेंट है, यहाँ पर ये लिखा नहीं हुआ है, द क्रॉस फीड इज गिवन बाय द सेडल मूवमेंट. तो ये डायग्राम भी आप लोग बना लेंगे. ठीक है, दिस इज अबाउट द सरफेस ग्राइंडिंग. तो सरफेस ग्राइंडिंग में भी एक्चुअली थ्री टाइप्स ऑफ सरफेस ग्राइंडिंग टेक्स प्लेस. It happens. First one, horizontal spindle and rotating table. Let me show you the diagram. Horizontal spindle and rotating table. This one. ठीक है, ये हमारा horizontal spindle. You can see it very clear. Okay, and this is the work surface. ये है हमारा first type. ठीक है, ये ग्राइंडिंग व्हील है, यहाँ पर हमारा ग्राउंड सरफेस है. तो यहाँ पे जो स्पिंडल है वो हॉरिजॉन्टल रहेगा, इसके ऊपर हमारा ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है और इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं. और ये फ्लैट सरफेस है. ओके, और अगर गोल वर्क पीस है तो गोल वर्क पीस को हम गोल गोल घुमा सकते हैं, तो रोटेटिंग टेबल में हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे वर्टिक जो स्पिंडल की जो पोजिशन है वो जो रहेगी, वो हमारे पास में हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहेगी, और हमको क्रॉस फीड यहाँ पर इस तरह से आगे पीछे मिलेगा. ठीक है, और इन फीड हमको यहाँ पे मिलेगा. ये जो एरो दिख रहा है इसका मतलब हम इसको नीचे कर सकते हैं, और आगे पीछे हम किसको करेंगे, यहाँ पर स्पिंडल स्पिंडल को. ठीक है, सेकेंड हम देखते हैं. सेकेंड वन, vertical spindle and rotating table. It is this. ठीक है, वर्टिकल स्पिंडल दिख रहा है आपको, ये वर्टिकल है, उसका स्पिंडल जो है वर्टिकल है, एंड दिस टेबल इज रोटेटिंग. ठीक है, यहाँ पर ये जो एरो दिखा रहा है दिस इज इनफीड. ठीक है, ये इनफीड है और ये व्हील इसमें गोल गोल घूम सकता है. एक्चुअली द वर्टिकल स्पिंडल मशीन्स आर ऑफ बिगर कैपेसिटी. ओके, द कंप्लीट मशीन सरफेस इज कवर्ड बाय द ग्राइंडिंग व्हील फेस. यू कैन सी इट. ओके, द कंप्लीट वर्किंग सरफेस, यहाँ पर जितना भी इसमें स्पेस बचा है दैट कैन बी कवर्ड बाय द ग्राइंडिंग wheel face. Then what type of material we can grind it here? It is used for a very large flat surface. अगर बहुत ज्यादा लंबा, जैसा क्योंकि इसका कैपेसिटी ज्यादा है तो हम बड़े साइज के फ्लैट सरफेस को आसानी से इसमें जनरेट कर सकते हैं. ठीक है, एंड ऑल्सो rather than this, in this machine both the work मतलब ये वाला वर्क, ठीक है, ये वाला जॉब जो है हमारे पास में, द वर्क एंड द व्हील रोटेट एंड फीड इनटू ईच अदर. हम इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं और हम इसको भी ऊपर नीचे कर सकते हैं. ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड टू ग्राइंड the production part, and as the capacity is very big you can also construct manufacture the very large size of flat parts, है ना. यहाँ पे प्रोडक्शन के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करके उसको बनाने के लिए हम इस मशीन का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इस मशीन का नाम क्या है, जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, वर्टिकल स्पिंडल. ठीक है, वर्टिकल स्पिंडल एंड रोटेटिंग टेबल, इसमें दोनों ही में ही मोशन मौजूद होता है. ठीक है, आई एम एक्सप्लेनिंग, यू कैन मेक द नोट्स ऑफ दिस पॉइंट्स. जो पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, प्लीज प्रिपेयर द नोट्स ऑफ ऑल द पॉइंट. ठीक है, कन्वर्ट इट इनटू योर ओन लैंग्वेज, हिंदी या आप इंग्लिश में चाहें, इंग्लिश में भी आपको नोट्स मिल जाएंगे नेट में, एंड प्रिपेयर दैट नोट्स. ओके, लेट्स सी थर्ड वन. Third type of surface grinding, it is
horizontal spindle and reciprocating table. ठीक है, इसका डायग्राम यही है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर जैसे मैंने बताया रोटेटिंग टेबल, जब फर्स्ट हमने पढ़ा था कि अबाउट द हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रोटेटिंग टेबल, तो यहाँ पर ये इस पे ये हमारा रोटेटिंग टेबल है, और यहाँ पर हॉरिजॉन्टल स्पिंडल के साथ में अगर हमारे पास में व्हील अटैच है, सेम कॉन्फ़िगरेशन, बस यहाँ पर आपको गोल टेबल लगाना है, दैट विल बी द फर्स्ट टाइप। और अगर यहाँ पर हम गोल गोल वर्किंग सरफेस के जगह पर अगर हम इस तरह का वर्क फीड लगा देते हैं, ये जैसा आपको दिख रहा है फ्लैट, तो दिस विल कम विद द थर्ड टाइप, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेट। ये जो मोशन आगे पीछे हो रहा है इसको हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन बोलते हैं, ये रोटेटिंग नहीं है। ठीक है, रोटेटिंग मतलब हमको राउंड सरफेस, जैसा यहाँ पर हमको था राउंड सरफेस चाहिए। ठीक है, तो दिस इज द third type of surface grinding machine, that is horizontal spindle and reciprocating table. इसमें भी आपको दिख रहा है, जैसा इसमें दिख रहा है कि इनफीड गिवन है, यहाँ पर इनफीड है, यहाँ पे क्रॉस फीड है। ओके, और यहाँ पर मूवमेंट जो है टू फ्रो मूवमेंट जो है वर्क में दी जाती है। ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज vertical spindle and reciprocating table, ये वाली डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे देखिए वर्टिकल स्पिंडल हो गया। ओके, और ये है यहाँ पर हमारा सरफेस है जो कि रेसिप्रोकेट हो रहा है। रेसिप्रोकेट मतलब क्या क्या होता है? रेसिप्रोकेट मतलब एक बार अपनी जगह पे आना, या अपनी जगह से आगे आना, फिर अपनी जगह पर वापस चले जाना, इसी को कहते हैं रेसिप्रोकेटिंग मोशन। मतलब आगे पीछे जो इस तरह से हिलता रहता है ना, उसको कहते हैं हम रेसिप्रोकेटिंग मोशन। और रोटरी मोशन मतलब गोल 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 घूमना। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर रेसिप्रोकेटिंग मोशन हो रहा है। ठीक है, तो और स्पिंडल की पोजीशन क्या है? वर्टिकल, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्टिकल स्पिंडल एंड रेसिप्रोकेटिंग table. Okay, in this grinding wheel, the machine is cylindrical and cuts the side rather than on its periphery. ठीक है, यहाँ पे पेरिफेरी के जगह पे, पेरिफेरी मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा एरिया। ठीक है, उसको कट करने के बजाय ये क्या करता है? साइड के एरिया को कट करता है ज्यादातर। द डायमीटर ऑफ द व्हील इज वाइडर, है ना, ये तो दिख ही रहा है अपने को, इससे ज्यादा चौड़ा होता है। ठीक है, वाइडर देन द वर्क पीस, एज अ रिजल्ट नो ट्रांसवर्स फीड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी इतना बड़ा होता है तो हमको ऐसा मूवमेंट देने की, ट्रांसवर्स फीड देने की हमको जरूरत नहीं पड़ती। खाली हम इस स्पिंडल की मदद, इस स्पिंडल को ऊपर और नीचे करेंगे और इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, तो हमको वो ऑब्जेक्ट का, वो पर्टिकुलर पार्ट का मशीनिंग हमको मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। ठीक है, so we have already discussed the two type of grinding machines. So we have discussed about the cylindrical grinding for generating cylindrical surface, and second one was surface grinding for generating flat surface. इसमें मैंने चार टाइप आपको बताया। ठीक है, इसमें अब next one is about the centerless grinding. It is very important topic. Many a time it has been asked in the question paper. So you have to put the focus on this सेंटरलेस ग्राइंडिंग। तो इससे पहले आपको इंटरनल ग्राइंडिंग मशीन के बारे में मैं बताऊंगी। व्हाट इज सेंटरलेस ग्राइंडिंग? ओके, चलो लेट्स डिस्कस इंटरनल मशीन के बारे में, मैं आपको बाद में बताती हूँ। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस सेंटरलेस ग्राइंडिंग। सेंटरलेस ग्राइंडिंग में क्या होता है? लेट मी मेक अ शेप्स so that I can explain in a broader way. So these are the grinding wheels I am making.
Okay, let's make a axis. I am trying to make an axis. Okay. You can easily see this. I am trying to get the center of the cylinders. Okay. This is the axis I'm trying to make. So that you can don't think that it is a simple line. It is the axis. And you know what is the specification of the axis lines. Okay. So here are the axis lines. Let's discuss what is it. This is a this is actually a job. ठीक है, जिसके ऊपर हमको काम करना होगा. And this is regulating wheel. This is grinding wheel. And this is work rest blade. देख सकते हैं आप लोग. दिस इज सेंटरलेस ग्राइंडिंग. अब इसमें आपको समझ में आ रहा है डायग्राम में क्या हो रहा है. यहाँ पे होता क्या है, ये ग्राइंडिंग व्हील है जो कि रोटेट करता रहता है. ठीक है, उसी के सेम रोटेशन में यहाँ पर एक रेगुलेटिंग व्हील रहता है. ठीक है, सिंपल व्हील रहता है. ये ग्राइंडिंग व्हील नहीं है, रेगुलेटिंग व्हील है. छोटा सा गोल सा आकार का रहता है ये. इन दोनों के बीच में जो हमारा जॉब है उसको फंसा दिया जाता है. इस जॉब को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर एक वर्क रेस्ट प्लेट लग रहता है ताकि ये जॉब जो है अपनी जगह से हिल ना जाए करके. ठीक है, तो जब ग्राइंडिंग व्हील जब काम चलना शुरू करती है तो हम क्या करते हैं, वर्क को जब इसके साथ कांटेक्ट में लाते हैं तो जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जॉब भी गोल गोल घूमने लग जाता है. तो ये इस तरफ से कहीं हिल ना जाए बोल करके हम क्या करते हैं, रेगुलेटिंग व्हील जो कि एक इनफ वेट के साथ होता है उसको हम इसके साथ में कांटेक्ट में ले आते हैं. और ये क्या होता है, प्रोसेसिंग यहाँ पर हमारे जो काम की प्रोसेसिंग है वो स्टार्ट हो जाती है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ सेंटरलेस ग्राइंडिंग. यहाँ पे कोई का भी सेंटर जो है आपस में मैच नहीं करता. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सेंटरलेस ग्राइंडिंग प्रोसेस थ्रू द फीड. ओके. अब इसमें एक्चुअली दिस सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट वन इज इन फीड and second is one what is called as a end feed. In feed and end feed. इसका भी मैं डायग्राम बना करके आपको बताती हूँ. It will make you clear. Simple मैं रफ डायग्राम बना रही हूँ so that it may not consume much time. So making a diagram, any of the diagram if you will make, it will take time.
अच्छा, so you have to keep the patience. These lines must be straight. This is a grinding wheel. Okay, I am making a simple diagram of side view actually. This is, you can take it as a side view. This is I'm going to make it as a regulating wheel. Let us make two diagrams so that I can differentiate between the in feed and end feed, how the in feed is different from the end feed. Okay, another diagram. Try to make the accurate diagrams. You can easily get from the books and the notes. Try to refer, and it is always available in the net also. आप गूगल करिए, आपको और अच्छे से डायग्राम मिल जाएगा. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू. This is a grinding wheel. This is a regulating wheel. This is end stop, and this one is the work. This is first one and this is second one. You can see the difference. ठीक है. इन फीड में क्या हो रहा है, यू कैन सी हियर इज अ ग्राइंडिंग व्हील, ये ग्राइंडिंग व्हील है और यहाँ पर रेगुलेटिंग व्हील है ना. और दिस इज द आवर जॉब, दिस इज आवर वर्क. ठीक है. यहाँ पर क्या हो रहा है, दिस इज एंड. यहाँ पर हम क्या करते हैं, इस जॉब को हम दोनों के बीच में ढकेलते चले जाते हैं. ठीक है, ये हमारा जॉब है जो कि अब ये शेप लेकर के इस तरह से इस शेप में आ जाता है. चौड़ा रहता है वो इस शेप में आता जाता है. और इसको सपोर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, एक एंड का इस्तेमाल करते हैं. एक अलग टाइप का शाफ्ट होता है या स्टॉपर होता है जो कि इसको अपने पोजीशन में होल्ड करके रखता है ताकि इसमें मशीनिंग हो जाए. ठीक है. यहाँ पर दिस इज इन फीड. यहाँ पर एंड फीड में क्या होता है, ये जो जॉब होता है हमारा, ये दोनों तरफ से सपोर्टेड रहता है. ठीक है. एक एंड स्टॉप होता है, यहाँ पर एक फ्रंट स्टॉप भी होता है. इन दोनों तरफ से इसको हम सपोर्ट करके रखते हैं, दो बिटवीन द ग्राइंडिंग व्हील एंड द regulating wheel. So these are the types of centerless grinding. Okay. Now what is the advantages of centerless grinding machine? Let us discuss about the advantages. Okay. While writing the notes, you can also write that how you are going to explain the construction. इसका construction आप कैसे बताएंगे? You can write like the process consists of the two grinding wheel, two large wheel. One is the large grinding wheel, यहाँ पर आपको दिख रहा है, and another one is the smaller regulating wheel, and the work is held between them. दोनों वर्क को हम दोनों व्हील के बीच में हम रख देते हैं. The regulating wheel is mounted, जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पे, mounted at the angle to the plane to the grinding wheel. ठीक है. द सेंटर ऑफ द एंगल, क्यों, ताकि इनके सेंटर्स आपस में मैच नहीं करना चाहिए. ठीक है. द वर्क पीस इज सपोर्टेड बाय द रेस्ट ब्लेड, जैसा मैंने आपको बताया. इस तरह से जैसा जो मैं बता रही हूँ उस तरह से आप अपने शब्दों में इसके जो कंस्ट्रक्शन है उसको लिखने की कोशिश कीजिए. ठीक है. तो व्हाट हैपेंस, एज अ रिजल्ट द वर्क रोटेट्स एट द सेम सरफेस स्पीड, जो स्पीड हमारा ग्राइंडिंग व्हील का होगा, एज दैट ऑफ द व्हील. द रेगुलेटिंग व्हील इज अ रबर और रेजोनाइट, जैसे मैंने बताया कि रेगुलेटिंग व्हील एक रबर या रेजोनाइट का बना हुआ होगा, व्हील होगा. ठीक है. एंड द स्पीड इज अप टू 10 to 15 मीटर पर मिनट होता है. ठीक है.
नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द एडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस क्या क्या हैं? The first advantage is, since it is a centerless grinding, so no need for having and maintaining सेंटर्स। सबके सेंटर को मैच करने का झंझट नहीं है, ठीक है, जॉब के सेंटर का, रेगुलेटिंग व्हील के सेंटर का, ठीक है। और अगर हमको ग्राइंडिंग करनी है तो सेंटर होल के भी हमको मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। एंड वर्क पीस, द सेकेंड एडवांटेज इज वर्क पीस कैन बी loaded and unloaded from the machine rapidly, ठीक है। वर्क पीस को बहुत आसानी से जल्दी से लगाया जा सकता है और जल्दी से उसको निकाला भी जा सकता है। थर्ड एडवांटेज, बैकिंग अप the work pieces by the regulating wheel and work rest blade eliminates any deflection। जैसा मैंने बताया कि वो अपनी जगह से हट ना जाए, ठीक है। तो ये भी एक बेनिफिट है वाइल द वर्किंग प्रोसेस, है ना। अपने को क्या चाहिए कि हमारा जो जॉब है ड्यूरिंग द वर्किंग, जब काम स्टार्ट होता है तो ये ना हो कि वो काम स्टार्ट होने की वजह से ड्यू टू द फोर्स एंड एवरीथिंग ये क्या हो कि अपने जगह से हिल जाए। जगह से हिल जाएगा तो गलत जगह कटिंग हो जाएगी, हमारे डिजाइन के हिसाब से कटिंग नहीं होगी। तो जो रेस्ट ब्लेड हम लगाते हैं तो वो क्या करता है, किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन वर्क पीस को अपने जगह से हटने से रोकता है, ठीक है। तो फोर्थ एडवांटेज क्या है? नेक्स्ट इज मिनिमम वियर इज ऑब्जर्व। इसमें काम करने से ये देखा गया है कि जो ग्राइंडिंग व्हील की वियरिंग है, मतलब घिसना जो हम कहते हैं, जो हम घिसना कहेंगे, वो घिसना बहुत ही ज्यादा कम होता है, ठीक है। फिफ्थ वन इज लेस ग्राइंडिंग अलाउंसेस में बी रिक्वायर्ड। क्या होता है कि क्योंकि सब चीज गोलाकार में ना हम देख सकते हैं, तो इन लोगों के बीच में क्या होता है, ये तीनों के बीच में पॉइंट कांटेक्ट होता है, तो हमको ज्यादा अलाउंसेस देने की जरूरत ही नहीं है पड़ती है। तो हमारा जो ज्यादा अलाउंसेस नहीं देने का क्या मतलब है कि उसकी जो एक्यूरेसी रहेगी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी। So these are the advantages of the grinding machines. Now what will be the limitations? Limitation क्या होगा फिर, इसकी कुछ बुराइयां भी तो होंगी। इतना अच्छा मशीन है तो कुछ ना कुछ तो बुराई होनी जरूरी है। तो इसमें बुराई क्या है? द सेटअप टाइम, इसको सेटअप करना जो है वो काफी ज्यादा समय लेता है सेटअप होने में, ठीक है। इसको सेटअप करने में ज्यादा टाइम लगता है। और इसकी लिमिटेशन एक ये भी है कि इट इज ओनली बी यूज्ड फॉर लार्ज वॉल्यूम प्रोडक्शन। मतलब कोई भी आइटम अगर हमको ज्यादा, एक ही टाइप का आइटम अगर हमको ज्यादा तादाद में बनानी है ना, काफी काफी ज्यादा संख्या में अगर हमको बनाना है तभी हम इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। छोटा मोटा काम करने के लिए हम इसको सेंटरलेस ग्राइंडिंग मशीन को नहीं यूज कर सकते। और साथ ही साथ जो तीसरा लिमिटेशन है, ये सिर्फ लार्ज वर्क पीस, ओनली सूटेबल ओनली फॉर लार्ज वर्क पीस। छोटे छोटे वर्क पीस को ऑपरेट करने के लिए ये मशीन जो है बहुत महंगा भी पड़ेगा और बहुत मुश्किल भी पड़ेगी अपने को काम करने के लिए। ऐसा नहीं कि काम नहीं होगा, होगा, बट बहुत मुश्किल पड़ेगी इसको काम करने के लिए। तो ये सिर्फ इसीलिए इसको ये सिर्फ सुटेबल है लार्ज वर्क पीस में काम करने के लिए, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग
machines. First one was cylindrical grinding machine, second one was surface grinding machine, and third one is centerless grinding machines. Okay. The next topic we are going to discuss about the work holding devices. We will talk it about in the next class. Okay. Thank you all of you.